Indian soldiers pushed back Chinese troops in Tawang. Times Now's team has been bringing in-depth reports from the region. This time our report is focused on the threat that PLA poses to Bhutan in its area adjoining Arunachal Pradesh. Have a look. Times Now has been keeping you ahead in the coverage of the Arunachal Pradesh sector after the Tawang clash, and now we have reached the India-Bhutan border, the only channel to report from India-Bhutan border, where there is the presence of Indian Army, SSB and ITBP, and like Arunachal Pradesh, there are places in Bhutan also where China has been trying to intrude the territory of Bhutan. It's been building villages close to the borders along the line of actual control, and towards Sikkim also in Doklam there have been reports that China has been building up its bridges, and especially in the Torsa Nala area, where in 2017 also we had seen a clash between India and China, and it lasted for 72 days. And now once again China is trying to build up its structures, and now here in Arunachal Pradesh, where along the line of actual control both the armies were involved in a skirmish on 9th of December. The situation is under control of the army. This part of Arunachal Pradesh where the borders of India and Bhutan meet, the situation is still peaceful, and on the other side where once again Arunachal Pradesh and China borders are meeting, there are restrictions of movement, but the Indian Army is deployed in ample number, in adequate number. The units are there so that any kind of intrusion attempt from China can be stopped there and then. So we've been reporting from all parts of Arunachal Pradesh after the Tawang clash, and this is the area where the Yam-Yam-Chu river flows through Arunachal Pradesh towards Bhutan, and this is a strategic location because in Bhutan also China has been trying to build its structures, trying to flex its muscles because it wants to come close to India. And in this area there have been efficient deployments of the Indian Army, ITBP and SSB, and the situation is strong, situation is under control by the army, as we've already seen the statements from the Eastern Army Commander, which is responsible for this area of responsibility in Arunachal Pradesh. This is Shivani Sharma with VJ Pankaj Gupta from India-Bhutan border for Times Now. Times Now is also reporting from the C2 Army base camp, which leads to Yangtze Forward Post, wherein Yangtze defied habitation for ages due to extreme terrain and weather. Now it is the grit of the Indian soldiers that helps them not only survive in the inhospitable terrain but also repeatedly thwart PLA attempts to transgress into this militarily critical sector. Here is a news report. The roads leading towards Yangtze is certainly a tough terrain. We have crossed the LG post, which is the base camp for Yangtze, and we would like to show you that how our forces have been maintaining their post in these kind of tough terrains. This is the mountain range of Sela Pass, and if you can zoom in, the top of the peak where the snow can be seen is known as the Sela Pass mountain, and the tunnel which we have shown you earlier is also important. This is Jang village, the Jang village which was also earlier occupied by the Chinese in 1962, and soon after crossing the Jang village on September 1962, the Chinese army actually withdraw them. This is a Jang waterfall which is on the left hand side, and the waterfall is leading towards India's territory, but the water which is coming out from the left hand side, this river like structure is the water which is coming from Chinese side. This is Yangtze side of the river, which is very important for the water source. The Chinese have also been maintaining their post on the other side. The Indian Army has very clearly stated that the peace has been maintained. There was a dialogue which happened from both the side. But in these kind of tough terrain, the forces have been maintaining their post, and they have made it very sure that the Chinese could not repeat what they have earlier done it. Well, many in the opposition have been doubting the capabilities of the Indian Army against China, but the ground reality is very different from the alleged malicious propaganda. Let us also listen in to what our youth in Arunachal thinks about the recent clashes in Tawang and the politics over it.
तवांग में चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश के बाद इस पूरे इलाके में सेना हाई अलर्ट पर है। सेना मजबूती से नियंत्रण रेखा की रक्षा कर रही है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पोर्टर्स हों, यहाँ काम करने वाले लोग हों, आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त इस पूरी घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, ये युवा हैं यहाँ के तवांग के। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको क्या लगता है जो पूरी घटना हुई है उसके बाद जो सेना है वो कैसे मजबूती से यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या आपको लगता है? मेरा नाम सोनम टाशी है। हम लोग जो स्टूडेंट यूनियन यहाँ का कम्युनिटी बेस का स्टूडेंट यूनियन का है जी। तो जो हालांकि अभी जो अगवा फैल रहा है तो इसका बारे में तो हम लोग को इतना भी पता नहीं है कि मतलब चाइनीज जो अंदर घुस के आया नहीं आया वो इतना हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ा मोड़ा तो होता है हर साल। लेकिन ये बात तो इतना तक पहुंच गया कि मतलब पॉलिटिकलाइज हो गया। रिसेंटली हमारा जो अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि मतलब चीफ मिनिस्टर साहब खुद मुंबई में है, उनको कुछ फिगर नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। तो ये ओपोजिशन वाला बात फैला रहा है और न्यूज चैनल वाला बात फैला रहा है। तो इसका वजह से हम लोग का ये तवांग जो है टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंड है। तो उसका वजह से अभी टूरिस्ट का सीजन भी है तो उसमें बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये पॉलिटिकलाइज हो गया तो ये ऐसे अफवाह नहीं फैलाने से ठीक है। आप मुंबई में बैठ के दिल्ली में बैठ के बात करना बहुत बड़ा बात है, लेकिन यहाँ की देखिए आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ का लोकल आदमी है, कुछ भी प्रॉब्लम तो यहाँ पर स्थिति सामान्य है ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और क्योंकि तवांग ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे देश के लोगों के पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो चीनी सेना को घेरने के लिए, उसको पीछे हटाने के लिए हमारे जो सैनिक हैं वो मुस्तैद हैं और यही बात है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति की जा रही है, हमारी सेना स्ट्रांग है, आपको क्या लगता है बार बार ऐसी बातें की जाती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे अपोजिशन लीडर्स हो, कि वो हमारे सैनिक पिट रहे हैं, तो आपको उस पर क्या कहना है? अच्छा, ये काफी एक राहुल गांधी जी ने काफी मजाक वाला बात कह दिया है, क्योंकि वो देश के कुछ और कोने में और हम यहाँ पे लोकल्स हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ का सिचुएशन हम झेल रहे हैं कि किस तरह का है। मैं राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से यही एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पे हम का जगह में आप आया है क्या? आप यहाँ पे क्या बॉर्डर में पहुंचे कि क्या हुआ नहीं हुआ? आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप हमारे सेना पिट रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल का बात नेचुरली है कि जब कुछ झगड़ा होता है तो हाथापाई होता ही है, तो दूसरा पार्टी भी पिटता है। लेकिन आपने वीडियो में क्लियरली देखा है कि किस तरह हमारे जवान डटकर एकदम हिम्मत के साथ में लड़ रहे हैं हमारे। तो अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे जो इंडियन आर्मी है उनको डिमोरलाइज तो मत कीजिए कि आप पीट रहे हैं करके, क्योंकि ये सारा देश देख रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। आपका पॉलिटिकल आप खेलना चाहते हैं तो अलग वे में खेलिए, पर जब ये एक नेशनल सिक्योरिटी का बात आ जाता है तो इसमें आप मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे तवांग वासियों का कि आप इसमें दखलंदाजी ना करें। अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो प्लीज हमारे इंडियन आर्मी को डिमोरलाइज भी मत कीजिए, क्योंकि हम हैं यहाँ के लोकल, हम एक स्टूडेंट यूनियन के मेंबर होने के नाते हम यहाँ पे काफी प्रोग्राम करते हैं इंडियन आर्मी के सामने। आपका नाम? मेरा नाम कुंचो ताशी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल मनपा स्टूडेंट यूनियन। कुंचो ताशी ने साफ साफ कह दिया है राहुल गांधी को कि आप खुद आके देख लीजिए, राजनीति मत करिए, हमारी सेना का मनोबल मत गिराइए। और भी युवा है मेरे साथ, आपको क्या लगता है इस बारे में? जो भी कुछ हुआ यहाँ पर, बार बार कोशिश जरूर करती है चीन की सेना, लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रांग है, सिक्योर है। जी हाँ, हमारे बाउंड्री सिक्योर्ड है, इंडियन आर्मी अच्छी तरह से डिफेंस कर रही है और इसके पीछे हमारे तवांग के यूथ भी उनके साथ है, तवांग के पब्लिक। 1962 में भी हमारे सिविलियंस ने इंडियन आर्मी के साथ बहुत ही मिलजुल कर चाइना का सामना किया था और इस बार भी वही होगा। बिल्कुल, तो ये मनोबल है जो भारतीय सेना को मजबूत रखता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेना के साथ काम कर चुके हैं, पोर्टर का काम कर चुके हैं सेना के साथ। आपको क्या लगता है, आपने भारतीय सेना के साथ में काम किया है एज अ पोर्टर, क्या लग रहा है कितनी स्ट्रांग स्थिति में हमारी सेना है और क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए हमको? हाँ, देखिए, ये मैंने एक भारतीय सेना के साथ काम किया था, ऐसा कुछ यहाँ का सामान इधर पहुँचाना। मैंने देखा है कि भारतीय सेना अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे भारतीय सेना को हराना बहुत ही मुश्किल है।
और जो पेमा खंडू जी ने कहा था अभी के टाइम 1962 नहीं है, ये 2022 है। इसमें हम भी एकदम रेडी है। लेकिन हम जो भारतीय सेना के साथ काम करते थे तो हम भी एकदम उन्हीं के साथ रेडी होते थे लड़ने के लिए और मरने के लिए। अभी भी हम रेडी है उनके लिए और हमारे देश के लिए। हम इंडिया के कोना पे बैठते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारी सेना पीट रहे हैं। राहुल गांधी खुद आए और यहाँ पर देखिए कौन पीट रहा है और कौन जीत रहा है। राहुल गांधी से मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, तो जवाब साफ मिल गया है जो यहाँ के तवांग के युवा हैं। और एक बार मैं चाहूंगी ये जो जज्बा है देशभक्ति का, आपके साथ जोर से हम कहना चाहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी उद्घोष के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है भारतीय सेना के साथ, जो मजबूती पे LAC पर डटी हुई है और चीन की चालबाजियों को लगातार जवाब दे रही है। Well, those are the voices of locals from Arunachal Pradesh. But on that note, let's take a very quick break. News and updates will continue on the other side as well.